Hi, good evening, all of you. So, this is the class number 6 for this chapter, Company Analysis Past and Present. Yes, thank you for wishing me Happy Teachers' Day, all of you. It's a privilege that I am getting to teach you all for your journey in finance, and I would wish that you are able to achieve your aspirations. You are able to achieve your potential. And if you don't realize your potential, you realize your potential and you work towards it. Thanks a lot. Okay. I have been traveling for the last 4-5 days. It has been very hectic. There was career clinic session in Delhi, which was supposed to be from 6 p.m. to 8 p.m. And it lasted from 6 p.m. to 11:30 p.m. where we just went on discussing about individual situations of students, and people, nobody left. They kept on hearing each other. Okay, that way. So it's been very hectic. My energy levels may be a little bit low. I am feeling it is low. I don't know. पढ़ाते पढ़ाते जोश में आ जाऊँ तो. Okay. And अभी भी काफ़ी सारे colleges start हुए ना. So in that case, there are number of live and sessions at colleges. So because of which अपने classes का timing change होगा कभी कभी. ठीक है. These things will be very frequent in this coming 1 week or so. Okay. Now with this, let us start. So अपने revenue का drivers, pricing power last class discuss कर लिए थे. I gave a number of examples. Movie theaters, hospitals, पहले Starbucks. तो बहुत सारा एग्जाम्पल से मैंने आइडिया भी दे दिया है कि हाउ इट इज़ डन. एंड ऑफ कोर्स आई हैव गिवन यू द बेस, जिससे कि आप खुद भी अलग अलग बिजनेस के बारे में सोच सकते हो. करेक्ट. नाउ बिफोर आई मूव अहेड इनटू LOS नंबर D, विच इज़ ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी एंड वर्किंग कैपिटल एनालिसिस. LOS नंबर D, बिकॉज वी हैव टू मूव इनटू द चैप्टर. ना चैप्टर कंप्लीट करना पड़ेगा, 2 LOS बाकी है. LOS D इज़ operating profitability and working capital analysis. Okay, so before I move into it, I would like to discuss with you all briefly a case study given in the core on warehouse club. I think class number 4 या 5 में उसका एक वो भी डिस्कस हुआ था. It was shared with you on the drive, warehouse club का. तो CFA Institute ने ये तीनों चैप्टर में, this chapter, the next chapter and the next chapter, they have discussed the warehouse club. So if anybody is referring to the core, उसको warehouse club छेप के दिखेगा. So therefore let's do the discussion. Basically there is a company in US by the name of Costco. Okay, एक company है US में जिसका नाम है Costco. I'm going to the write up जिससे कि आप थोड़ा सा वो कर सको. Case study, warehouse club adapted from Costco. Costco is the company. In case somebody goes into ChatGPT and wants to get the business model of Costco, the financials of Costco, the share price of Costco, the trend analysis of Costco, तो कॉस्टको का पूरा इन्फॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल है. ठीक है, आप कॉस्टको के वेबसाइट पे जा सकते हो, अर्निंग्स रिपोर्ट पढ़ सकते हो, जो भी आपको पढ़ना है. तो वेयरहाउस क्लब इज अ सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ कॉस्टको. नाउ दिस इज अ डिस्काउंट रिटेलर. ऐसा कोई भी सिमिलर मॉडल इंडिया में प्रेजेंट नहीं है. ये B2C है with membership, which means अगर आप warehouse club में, Costco में, if you want to shop, you will get a very steep discount. आपको बहुत सस्ते में मिलेगा. However, in order for you to shop from there, you have to become a member.
केवल मेंबर्स अलाउड टू शॉप है। मेंबरशिप फीस $60 है, $60 पर एनम। ओके, $60 पर एनम, दैट्स द मेंबरशिप फीस। सो इट्स अ थिंग दैट जब कोई $60 पे कर रहा है तो सोचेगा कि मेरे को जो डिस्काउंट मिलने वाला है वुड इट बी मोर देन $60? तो दैट विल डिपेंड अपॉन कि आप कितना परचेस करते हो। तो इट विल इंटाइस यू टू वसूल, वो जो वसूली होता है ना कि यार और परचेस करते हैं तब तो जाके मेरा $60 वसूल होगा। अतुलित गुप्ता इज सेइंग दैट्स अ मेट्रो कैश एंड कैरी इन इंडिया follows the same model. It is not exactly the same model because Metro Cash and Carry, Reliance Cash and Carry are both B2B. They are not B2C. Metro Cash and Carry as well as Reliance Cash and Carry are not similar to Costco because they are B2B. They are not B2C. Okay. So therefore there is no similar player in the Indian market. DMart वगैरह का तो बात ही नहीं आता है because DMart वगैरह में मेंबरशिप मॉडल नहीं है, उस पर स्ट्रेट अवे कोई भी जाके शॉप कर सकता है, ठीक है ना। अब उसके अलावा लोग जोश में आके जोमेटो, गोल्ड, हेन तेन बोल रहे हैं, आपको बोलना अलाउड है, जो बकना है बकते रहो, ठीक है ना, डजेंट मैटर। सो आई हैव टू मूव इन टू द चैप्टर में, वो कंप्लीट करना है। आई कैन नॉट जस्ट स्टॉप बाय एंड वरुण बंका ने ये बोला, इसने ये बोला है, ठीक है भैया, आपने जो बोला है आप अपना रिसर्च करते रहो। एज आई टोल्ड यू, मेरा रिसर्च किया हुआ है, देयर इज़ नो सिमिलर मॉडल इन इंडिया। Metro Cash and Carry and Reliance Cash and Carry are very similar to Costco, but they are B2B, they are not B2C. In fact, a serious student will try to study कि सर इंडिया में ऐसा मॉडल क्यों नहीं है, what are the problems, infrastructure problems है, cultural problems है, there are some problems because of which इंडिया में ऐसा मॉडल नहीं है। That is for you to investigate, ठीक है। तो वो पार्ट ऑफ द करिकुलम नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा डाइवर्ट नहीं करूँगा, पर मैं आपको आइडिया जरूर दूंगा जिस चीज़ का आप रिसर्च कर सकते हो कि इंडिया में कॉस्टको जैसा B2C डिस्काउंट रिटेलर मेंबरशिप वाला मॉडल क्यों नहीं है। ओके, दैट इज़ फॉर यू टू डिस्कस। कुछ लोग जवाब दे रहे हैं क्यों नहीं है, ठीक है, आपका ओके है, मैं आपका नाम लेके जवाब लोगों के साथ शेयर नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। सर हम बहुत दुखी हो रहे हैं, प्लीज़ दुखी होइए, ठीक है। तो ये जो कॉस्टको है ये $60 मेंबरशिप का चार्ज करता है 1 साल का। मेंबरशिप फीस ये लोग शायद 3 साल में 5 साल में, आई डोंट रिमेंबर, सी आई एम नॉट गोइंग टू मग अप व्हाट इज रिटन इन द बुक। 4-5 साल में लोग मेंबरशिप $5 से बढ़ाते हैं। ओके, एवरी 5 years दे इंक्रीज द मेंबरशिप बाय $5। ओके, दैट्स द इन्फ्लेशन दैट दे बिल्ड इन। मेंबरशिप इज अ रिकरिंग सोर्स ऑफ रेवेन्यू। इनका मेंबर्स बढ़ रहा है, द फिगर्स आर गिवन इन द टेक्स्ट, आई डोंट रिमेंबर, सम 10 million मेंबर्स अभी है, तो 10 into 60, $600 million is the membership fees collected in the recent year ended. Okay, $600 million। और ये मेंबर्स जो मेंबर्स बन गए वो लोग चेप के शॉप करते हैं बिकॉज उन लोग को $60 वसूल करना है, अदरवाइज क्या चीज़ का $60 पे किए, तो इट बिकम्स अ वेरी गुड एक्टिविटी कि ये लोग शॉप करने आएंगे। जो शॉप करते हैं उसमें ऑब्वियसली ब्रांडेड आइटम्स है विच आर वेरी पॉपुलर एंड कुछ प्राइवेट लेबल आइटम्स है। यू हैव टू अंडरस्टैंड समथिंग। चलो डीमार्ट का एग्जांपल लेते हैं। डीमार्ट पे जाके जब आप कोलगेट टूथपेस्ट बाई करते हो तो इन दैट केस डीमार्ट वाला ज़्यादा नहीं अर्न कर रहे हैं, बहुत वेफर थिन मार्जिन्स। बट डीमार्ट अपने स्टोर में प्राइवेट लेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, प्राइवेट लेबल भी सेल कर रहा है जिसका मैन्युफैक्चरिंग भी डीमार्ट खुद कराता है, उसको बोलते हैं प्राइवेट लेबल। और उसके अंदर सॉलिड मार्जिन होता है 30%, 40%, 50% मार्जिन। तो इन दैट केस डीमार्ट में जो पूरा फ्लोर अरेंज्ड है वो इस तरह से अरेंज्ड है कि कोलगेट के बगल में आपको प्राइवेट लेबल का दूसरा चीज़ दिखेगा एंड यू विल नॉट बी एबल टू डिस्टिंग्विश टू मच, तो आप वो भी साथ में बाई कर लोगे। जो भी इस बिजनेस में एक्चुअली गुड प्रॉफिट अर्न करना चाहता है उसका मेन फंडा है काश लोग आए कोलगेट को लेने के लिए बट साथ में प्राइवेट लेबल का कुछ और बाई कर ले। तो उस केस में कोलगेट में जरा सा कमाया, क्लाइंट को टाना, और प्राइवेट लेवल में जोर का कमाया। तो दैट मिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ दैट मिक्स कुड बी increased in favor of private label, it becomes a very profitable ball game, which I think DMart does it beautifully. Okay. Anyways, coming to Costco, तो Costco का भी branded goods है जो है, जो लोगों से आता है, माने whatever हिंदुस्तान यूनिलीवर एंड ऑल से, और उसके अलावा प्राइवेट लेबल है, ठीक है। तो कितना प्राइवेट लेबल है आई एम नॉट अवेयर ऑफ द सेम, मेरे को ध्यान नहीं है कितना प्राइवेट लेबल है, ठीक है ना। कुछ सेइंग दैट्स अ वॉलमार्ट भी सेम करता है, यस। डीमार्ट तो वॉलमार्ट को देख के ही बना था,
डीमार्ट जो है वो वॉलमार्ट को देख के ही बना था, एग्जैक्टली कॉपी करने के लिए डीमार्ट बना था. ओके, इट वॉज मेड इन द डायरेक्शंस ऑफ वॉलमार्ट, बट कॉस्टको इज डिफरेंट बिकॉज इट इज ओनली फॉर इट्स मेंबर्स. तो मेंबरशिप मॉडल है उसमें, एंड देयरफॉर इट इज टोटली डिफरेंट. एनीवेज, नाउ ये लोग जो है कॉस्ट लीडर हैं. इट्स इंपॉर्टेंट टू स्पेंड सम टाइम ओवर हियर, ऑल्दो नेक्स्ट चैप्टर में और ज़्यादा बढ़िया से होगा इंडस्ट्री वाले एक चैप्टर में. अ कॉस्ट लीडर बाय द नेम इट सजेस्ट दैट उन लोग का लोएस्ट कॉस्ट है इंडस्ट्री में. लोएस्ट कॉस्ट क्यों होता है? एक होता है बिकॉज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल. इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब बहुत सारे कॉस्ट तो फिक्स्ड है ना, तो इफ यू कैन डू अ लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स का बिजनेस तो द पर यूनिट कॉस्ट कम्स डाउन. ओके, पर यूनिट कॉस्ट कम्स डाउन, इकोनॉमीज ऑफ स्केल. जिनका इकोनॉमिक्स में कॉस्ट माने इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ है 11-12 में, दे विल रिमेंबर दैट द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व AFC TFC डिवाइड बाई Q. तो TFC कांस्टेंट है, यू डिवाइड बाई Q, द AFC कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग थ्रू आउट. Okay, it's a rectangular hyperbola. Don't ask me what a rectangular hyperbola is. We will not discuss it over here. ठीक है, what I mean to say is that economies of scale जो है वो जोर से होता है इस बिजनेस में. और economies of scale क्यों हो पाता है? Because membership model है. तो जो membership हो रहा है, they would obviously want to spend more, and therefore the quantity goes up, and therefore the fixed cost per unit comes down. Secondly, ये लोग सारा का सारा माल नहीं रखते हैं जो बाकी हाइपर मार्ट्स और सुपर मार्केट्स रखते हैं ना. दे डोंट कीप सो मच ऑफ वैरायटी, दे कीप स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ आइटम्स. ओके, एंड दे कीप फैमिली साइजेस, फैमिली पैक. हर एक साइज का नहीं रखते हैं, तो हर एक ब्रांड का नहीं रखते हैं, हर एक साइज का नहीं रखते हैं. दे कीप लिमिटेड वैरायटी एंड लिमिटेड ब्रांड. सर आई थिंक मेरे को जो याद है 4000 आइटम्स, यूनिक आइटम्स दे कीप इन देयर स्टोर्स. एंड जो हाइपर मार्ट्स और सुपर मार्केट्स है उनमें 15,000 16,000 आइटम्स होता है. सो दे आर कीपिंग ओनली 25% ऑफ द आइटम्स एंड साइजेस विच आर अवेलेबल इन जनरल सुपर मार्केट्स एंड हाइपर मार्केट्स. ओके, जस्ट 1/4 ऑफ दैट. नाउ एज अ रिजल्ट ऑफ इट दे परचेज इन बल्क, एंड सिंस दे परचेज इन बल्क दे आर एबल टू अचीव डिस्काउंट इन परचेजेस. तो इनका जो प्रोक्योरमेंट है वो सुधर जाता है. फैमिली साइज पैक है, नो फ्रिल्स डेकोरेशन, मतलब ये जो वेयर हाउस के जैसे सब चीज जचाया हुआ है, कोई बहुत सजाया हुआ नहीं है. इट्स नॉट लाइक नेचर्स बास्केट. वेयर हाउस के जैसे सजाया हुआ है, सब चीज लेबल लगा के, एंड वेरी वेरी रॉ स्ट्रक्चर में ऑपरेट करते हैं, जैसे इन्वेंट्री तुरंत आ जाए, तुरंत निकल जाए, मतलब कोई ज्यादा झमेला पाल नहीं रखे है. ओके, दे आर कॉस्ट लीडर्स. ओके, Anhad is saying less aesthetic. Yes, less aesthetic. It is for those who are searching for value. Okay, जो वैसे millions of people है. ठीक है, बोलता है हाई रोटेटिंग आइटम्स रखते हैं. यस, हाई रोटेटिंग आइटम्स रखते हैं. कस्टमर्स भी जानते हैं कि ये जो कॉस्टको है ये इतना सोच के आइटम्स रखता है ना कि इसका आइटम सस्ता ही होगा. तो एक विश्वास आ गया कस्टमर्स पे, तो वो लोग ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाते हैं यहाँ इतने मिल रहा है तो वहाँ कितने मिल रहा है, यार मैं दिमाग लगाऊँ क्या. नो, दे डोंट. दे आर वेरी डेडिकेटेड टू कॉस्टको. सो यू हैव membership growing, you have the members buying more and more, and therefore private label sales भी बढ़ रहा है, and therefore वैसा हो रहा है. So there are two things, one is called cost leadership, the other is called price leadership. Cost leadership comes as a result of internal discipline. Okay, price leadership comes as a result of positioning. Cost leadership comes as a result of internal discipline, while price leadership comes as a result of positioning. पोजिशनिंग का मतलब वी आर पोजिशनिंग आवर सेल्फ इन द मार्केट दैट यस यू विल गेट हमारे यहाँ पे लोएस्ट प्राइसेस पे. दैट्स अ प्राइस लीडर. ओके, कॉस्ट लीडर मतलब हम लोग इतना बढ़िया से लेबर, रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री, प्रोक्योरमेंट ये सब मैनेज कर रखे हैं कि हमारा कॉस्ट चीपेस्ट है. और प्राइस लीडरशिप का मतलब हुआ हम लोग पोजिशन कर रहे हैं अपने आप को कि हमारे यहाँ सबसे सस्ता मिलेगा. दैट्स कॉल्ड प्राइस लीडरशिप. बहुत जन को क्लियर नहीं है. Okay, I'm taking my time over here. Let me take further examples. If I talk about, say, Zara. Zara जो है, it's a cost leader, but it is not a price leader. Zara is a cost leader, it is not a price leader. यानी Zara का भी control over cost बहुत fine है, least cost.
बट प्राइस थोड़ा ज्यादा है, यानी मार्जिन्स आर फैट, तो वो इसका स्ट्रैटेजी है ज़ारा का. दे डोंट वांट टू बी प्राइस लीडर, दे आर कॉस्ट लीडर एंड दे एंजॉय द कॉस्ट लीडरशिप इन द फॉर्म ऑफ हाई मार्जिन्स. सेम इज ट्रू फॉर एप्पल. एप्पल कहां से प्रोड्यूस करवा रहा है? चाइना से, इंडिया से. तो एप्पल का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो तो आपको मानना पड़ेगा लो है. एप्पल का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो तो आपको मानना पड़ेगा लो है. ओके, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लो, बट एप्पल इज ऑब्वियसली नॉट सेलिंग एट अ लोअर प्राइस. इट्स चार्जिंग वेरी हाई प्राइस such that it is not positioning itself as a price leader. I have given two examples. There is no question of somebody saying नहीं समझे. क्यों नहीं समझे? आपको एग्जाम्पल के साथ बता रहे हैं. ठीक है, कॉस्ट लीडरशिप, प्राइस लीडरशिप. कॉस्ट लीडरशिप मतलब लोएस्ट कॉस्ट पे हम प्रोड्यूस करते हैं. ओके, दैट कम्स एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरनल डिसिप्लिन एंड स्ट्रक्चरिंग. प्राइस लीडरशिप कम्स एज अ रिजल्ट ऑफ पोजिशनिंग. सो कॉस्टको is a cost leader as well as price leader. DMart is a cost leader as well as price leader. Walmart is a cost leader as well as price leader. Indigo Airlines is a cost leader as well as price leader. Okay, इतना सारा एग्जाम्पल्स मैंने दिए है. DMart, Walmart, ये सब कॉस्ट लीडर एंड प्राइस लीडर बोथ है. ठीक है, तो दे हैव द चीपेस्ट कॉस्ट, एट द सेम टाइम दे पोजिशन देमसेल्व्स दैट एयरलाइन टिकट सबसे सस्ता इंडिगो में मिलेगा. ठीक है, दैट्स कॉल्ड कॉस्ट लीडरशिप, प्राइस लीडरशिप, एंड दैट इज व्हाट वेयरहाउस क्लब इज क्लेमिंग टू अचीव. ओके, claims to achieve. Of course an analyst has to check it out by comparing with other firms in the same industry कि क्या actually इसमें value proposition है क्या. तो value proposition ये है कि हमारे member बनो और आपको सस्ते में ठीक चीज मिलेगा. हम लोग फालतू में we will not spoil you for choice. 50,000 चीज आपके सामने नहीं रखेंगे. We will keep limited things which are actually suitable for you and which are bargain purchases. Okay, that's how it happens. That results in more purchases. Okay, more purchases results in more profit. They are able to get more members. More members mean more purchases. Cost of production comes down. Okay, per unit cost comes down. Okay, so that way. So this is what happens. Now, I am not commenting on what students are writing, ठीक है, because I cannot and I should not, because just to tell you the flavor of the comments, कुछ प्रजापति is writing sir Indigo is bad for 6 foot people. Okay, तो वो अलग ही चीज में चला गया. Indigo is bad for 6 foot people, वो ये बोल रहे हैं. तो आप समझ सकते हैं लोग क्या क्या लिख रहे होंगे जो मैं इग्नोर कर रहा हूँ. ठीक है, सो क्या आपको कॉस्ट लीडरशिप, प्राइस लीडरशिप समझ में आया? थोड़ा सा लिख लेते हैं. लेट्स कम. लिमिटेड आइटम्स, फैमिली पैक, बल्क प्रोक्योरमेंट, नो फ्रिल्स, warehouse structure, low labor churn, लेबर चर्न कम है इनमें. सो देयरफॉर ये लोग वेज रेट ज़्यादा देते हैं, बट उसके बावजूद भी, ऑल्दो ये लोग वेज रेट ज़्यादा देते हैं पर उसके बावजूद भी इनका लेबर कॉस्ट वैसे कम है. ओके, ज़्यादा वेज रेट दे के भी, बिकॉज एम्प्लॉयज छोड़ना फिर नए को एम्प्लॉय करना ये सब झमेला इनके है नहीं. ओके, लो लेबर चर्न, लो थेफ्ट, लॉयल कस्टमर्स है. द थेफ्ट रेट इज लेस. जो होता है ना ये सब स्टोर्स में से 2% थेफ्ट, 5% थेफ्ट, वो इनमें कम होता है इन लोग के यहाँ. ऐसा लिखा हुआ है राइटअप में. सर क्या ये एग्जाम के लिए वेयरहाउस क्लब को याद करना पड़ेगा? नो, मैंने पहले ही बोल दिया है. सर तो फिर आप हम लोग का टाइम वेस्ट करके वेयरहाउस क्लब क्यों बता रहे हैं? बिकॉज कोर रीडिंग्स में वेयरहाउस क्लब को लेके तीनों चैप्टर में बोला हुआ है. तो अगर मैं नहीं बताऊंगा तो सम स्टूडेंट विल लेटर ऑन कंप्लेन दैट्स व्हाई यू डिड नॉट एक्सप्लेन द केस स्टडी विच इज देयर इन द कोर. ओके, देयरफॉर सर क्या आप हर एक पॉइंट बता पा रहे हैं, लिखा पा रहे हैं? नो, मैं बहुत कुछ पॉइंट मिस कर रहा हूँ. तो सर अगर हम इंटरेस्टेड है तो खुद से रीड करें क्या? यस, बट सर अगर हम इंटरेस्टेड नहीं है तो खुद से नहीं रीड करने से चलेगा? चलेगा फ्रॉम एन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सर मैं डायरेक्टली कॉस्टको का एनालिसिस करूँ तो हाँ कर सकते हैं. सर मेरे को वॉलमार्ट का करना है, कर सकते हैं. मेरे को डीमार्ट का करना है, कर सकते हैं. तो जिसका करना है कर सकता है. ठीक है ना.
ओके ये लोग नंबर ऑफ स्टोर्स खोलते जा रहे हैं. ऐसा पाया गया है कि 90% ऑफ देयर कस्टमर्स लिव विद इन 10 किलोमीटर्स ऑफ देयर स्टोर्स, सो दे वांट टू ओपन स्टोर्स इन न्यू एरियाज. तो स्टोर एक्सपेंशन इज अ मीडियम ऑफ ग्रोथ, प्लस सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ इज अनदर मीडियम ऑफ ग्रोथ, प्लस मेंबर्स इज अ मीडियम ऑफ ग्रोथ. ठीक है, ये सारी चीजें. मीडियम ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी के लिए वी हैव टू लुक एट देयर कॉस्ट, और मैंने बोला कॉस्ट लीडर है. ठीक है, तो ये लोग, तो ये सारा स्टफ जो है वेयर हाउस क्लब के बारे में लिखा हुआ है. यू आर इनकरेज्ड टू रीड इट. एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ टाइप है जो लिखा हुआ है, क्या बोलते हैं, को रीडिंग में सबसे बेस्ट होगा अगर आप वो पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं, उसको जीपीटी पे डालते हैं और बोलते हैं समराइज द सेम फॉर मी. और जो ये नहीं कर सकता है उसका कुछ नहीं हो सकता है. ठीक है, जिसको जोर आता है ना करते हुए, उसका कुछ नहीं हो सकता है. पुट द एंटायर पैराग्राफ इन जीपीटी, आस्क इट टू समराइज द सेम फॉर यू. इट विल टेल यू what is the business model. For example, what do they sell, whom do they sell, okay, what do they sell, whom do they sell, ठीक है, how do they sell, okay, at what price do they sell. ये सारा का सारा जो बिजनेस मॉडल में स्टडी किए थे वो कॉस्टको का किया हुआ है. जीपीटी उसको और बढ़िया से समराइज कर देगा. मैंने लिखा है लो थेफ्ट, चोरी कमती होती है. ओके, लो थेफ्ट, ओके, लो थेफ्ट. सो मैं वेयरहाउस क्लब में और ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रहा हूँ. आई एम नॉट स्पेंडिंग मोर टाइम बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ एक्चुअली ए टाइम वेस्टेज. हमने सिनेमा हॉल्स, हॉस्पिटल्स और बहुत जन का डिस्कस किया था. ठीक है ना, ओके. चलिए अब आते हैं अपने एलओएस नंबर डी में. एलओएस नंबर डी, कोई बताएगा क्या कौन से क्लास में आपको ड्राइव में वेयरहाउस क्लब का पीपीटी शेयर किया गया था? In which class number the PPT of warehouse club was shared? Class number 4 I think था. I think class number 4 में warehouse club का PPT शेयर हुआ था. Yes, everybody is confirming. तो आप ड्राइव में चेक कर सकते हैं इन केस आपको हम लोग का पीपीटी देखना है तो, वरना आप खुद का पीपीटी जीपीटी से क्रिएट करवा सकते हैं. ठीक है, 3 या 4 जिसमें भी हुआ था आप चेक कर लीजिएगा. चलिए, एलओएस नंबर डी, ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी एंड वर्किंग कैपिटल एनालिसिस. ना इसमें बहुत सारा टर्मिनोलॉजी है और वो टर्मिनोलॉजी अभी तक इस बैच में मैंने ठीक से डिस्कस नहीं की है. देयरफॉर आई विल गो स्लो. जो स्टूडेंट्स अभी एग्जाम दे रहे हैं इससे 3 महीने बाद, उनके लिए वो स्लो स्पीड इज़ नॉट सूटेबल. एंड देयरफॉर मैंने बोल दिया था जिनका नवंबर में एग्जाम है उनको पुराने वाले क्लासेस से कर लेना चाहिए ये चैप्टर. ठीक है, सो दे कैन नॉट लेटर ऑन कंप्लेन डेट सा आपने इसको धीरे धीरे क्यों बताया था इतना, तेरे को जल्दी जल्दी करना है. तो फिर इन दैट केस फ्रॉम द ओल्ड क्लासेस यू कैन डू द सेम. अभी इस बैच में मैंने बताया नहीं है जो जो टर्म्स ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी एंड वर्किंग कैपिटल एनालिसिस में है, तो आई विल गो स्लो. ठीक है ना, ओके. सो फॉर दिस पर्पस लेट अस लुक एट 3 टाइप्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट. देखो, 3 टाइप्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट. टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3. तो जो फर्स्ट वाला इनकम स्टेटमेंट है वो लिख रहा हूं, रेवेन्यू 1000, मटेरियल कॉस्ट 180, लेबर कॉस्ट 220, रेंट, यूटिलिटीज 100, डेप्रिसिएशन 150, R&D कितना हो गया अभी तक? ये हो गया 400, 500,
650, 50, other operating expenses 100. I am requesting nobody should create a problem regarding sir क्या लिखे, material cost, labor cost, rent, utilities, depreciation, R&D, other operating expenses. ठीक है, तो इन दैट केस अपना EBIT which is operating profit is coming to I think 200. EBIT 200 आ रहा है, EBIT is 200. Am I correct? चेक कर लो, 1000 में से सारा कॉस्ट लेस किए 200 आ रहा है क्या? 1000 में से सारा कॉस्ट लेस किए तो 200 आ रहा है क्या? दैट्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट. ऑपरेटिंग बिकॉज अभी तक इंटरेस्ट यानी फाइनेंशियल पार्ट लेस नहीं हुआ है, देयरफॉर इट्स कॉल्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट. क्या ये 200 आ रहा है? ओके, एवरीबॉडी सेइंग यस सर 200 आ रहा है. तो 200 आया EBIT. इंटरेस्ट कॉस्ट 50. Profit before tax PBT is 150. Tax at the rate of 20%, 30. Therefore, net income 120. Is everybody okay with this? Is everybody okay with this? मैंने रेवेन्यू में से सारा ऑपरेटिंग खर्चा सोचा कि भाई मटेरियल कॉस्ट लगता है, लेबर कॉस्ट के बदले मेरे को लिखना चाहिए था एम्प्लॉई कॉस्ट, बट लिख दिया तो लिख दिया 220, रेंट यूटिलिटी 100, डेप्रिसिएशन 150, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर 50, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर 100, EBIT 200, इंटरेस्ट कॉस्ट 50, PBT 150, टैक्स एट द रेट ऑफ 20% 30, नेट इनकम 120. आई होप इस पर किसी को कोई इशू नहीं है. ये जो इनकम स्टेटमेंट है ना, इसमें expenses have been classified according to their nature. According to their nature. वो मटेरियल कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है. लेबर कॉस्ट में फैक्ट्री का भी लेबर आ गया, ऑफिस का भी एम्प्लॉइज आ गया, इसलिए मेरे को एम्प्लॉई कॉस्ट लिखना चाहिए था वैसा कुछ. रेंट यूटिलिटीज, डेप्रिसिएशन जो है वो प्लांट मशीनरी का भी है और डेप्रिसिएशन जो ऑफिस इक्विपमेंट का भी है, दोनों को अलग अलग नहीं किया. डेप्रिसिएशन माने डेप्रिसिएशन. तो दैट्स कॉल्ड नेचर वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट. नेचर वाइज, नेचर प्रकृति. ओके, नेचर वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट. आप समझेंगे मैं क्यों फोकस कर रहा हूं. दूसरा देखते हैं. चलो, रेवेन्यू 1000 लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 300. So gross profit 700 less SG&A 400 less R&D 100, EBIT 200, interest cost 50, PBT 150, tax 30, net income 120. तो ये जो लिखा हमने रेवेन्यू लेस COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सबको पता होगा COGS का फुल फॉर्म कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया GP लेस SG&A. SG&A का फुल फॉर्म जिसको नहीं पता है सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस. सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 400 लेस R&D. सा आपने लेफ्ट वाले पार्ट में भी R&D लिखा था, राइट वाले पार्ट में भी R&D. कारण बहुत जन R&D को नेचर वाइज क्लासिफिकेशन मानते हैं और बड़े बड़े टेक्नोलॉजी फर्म में R&D को फंक्शन मानते हैं. तो R&D नेचर वाइज भी होता है, R&D फंक्शन वाइज भी होता है. यूजुअली नेचर वाइज होता है.
छोटे मोटे कंपनी में R&D नेचर वाइज माना जाता है, बट बड़े कंपनी में R&D फंक्शन वाइज होता है, इसलिए मैंने दोनों में लिख दिया। EBIT 200, इंटरेस्ट कॉस्ट 50, PBT 150, टैक्स 30, नेट इनकम 120। ना दोनों में डिफरेंस क्या बता रहा हूं, प्लीज ट्राई टू थिंक अबाउट द फैक्ट दैट डेप्रिसिएशन COGS और SGA दोनों ही मिला हुआ है। इज इट? डेप्रिसिएशन COGS और SGA दोनों ही मिला हुआ है, आपको समझ में आ रहा है? सुधांशु, अमित केडिया, प्रिया, भूमि, जो डेप्रिसिएशन है वो COGS में ही मिला हुआ है, वो SGA में ही मिला हुआ है। ये आप लोग को समझ में आ रहा है क्या? डेप्रिसिएशन COGS में ही मिला हुआ है, SG&A में ही मिला हुआ है। प्लीज बताइए, समझ में आ रहा है क्या? बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन डेप्रिसिएशन कहां का है। इज इट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो वो COGS में। सांची महेश्वरी को समझ में नहीं आ रहा है, बाकी सब जन ने यस यस बोला, ओनली सांची महेश्वरी हैड सेड नो। तो सांची जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसमें जो प्लांट एंड मशीनरी है ना, जो यूज हो रहा है प्रोडक्शन में, उसका डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में है, और जो ऑफिस फर्नीचर और इक्विपमेंट है उसका डेप्रिसिएशन SG&A के अंदर है, उसका डेप्रिसिएशन SG&A के अंदर है। सांची और संस्कृति दोनों में SAN तक सेम है। सांची SANCHI, संस्कृति SANSKRITI। तो इन दैट केस समझाने का कोशिश कर रहा हूं, प्लीज बताइएगा समझ में आया क्या? वैसे ही जो लेबर कॉस्ट है वो COGS SGA दोनों में है। फैक्ट्री का लेबर कॉस्ट जो है वो COGS में है, और जो ऑफिस का लेबर कॉस्ट है वो SG&A में है। तो दोनों को समझ में नहीं, सांची को समझ में आ गया, संस्कृति का अभी तक जवाब नहीं है। ठीक है, तो ये जो कॉस्ट क्लासिफिकेशन होता है ये फंक्शन वाइज होता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, संस्कृति को समझ में आ गया। SG&A, सेलिंग जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जो माल बेचने में और एडमिनिस्ट्रेशन में खर्चा लगता है, वेदर वो मटेरियल कॉस्ट लगता है या लेबर कॉस्ट लगता है, सब क्लब कर दिए। तो मटेरियल कॉस्ट नहीं दिखाए, लेबर कॉस्ट नहीं दिखाए, अपने ग्रुप कर रहे हैं फंक्शन वाइज। फंक्शन लेफ्ट साइड में था नेचर वाइज, है क्या वो, मटेरियल कॉस्ट है कि लेबर कॉस्ट है। राइट साइड में फंक्शन वाइज, उसका काम क्या है, गुड्स प्रोड्यूस करना तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसका काम क्या है, सेल्स करना और एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा तो SG&A। So that's called functional classification, type 2 functional classification। और लास्ट वाला रेवेन्यू 1000 लेस वेरिएबल कॉस्ट 200। तो वेरिएबल कॉस्ट लेस करने से जो आता है उसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। ओके, वेरिएबल कॉस्ट लेस करने से जो आता है उसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। लेस ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट 600, तो ये आ गया अपना EBIT, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 200 लेस इंटरेस्ट कॉस्ट 50, तो आ गया PBT 150 लेस टैक्स एट 20% 30, तो आ गया नेट इनकम 120। तो ये जो था इसमें राइट लास्ट वाले में यू विल फाइंड दैट वी हैव क्लासिफाइड कॉस्ट बेस्ड ऑन द बिहेवियर विथ रिस्पेक्ट टू आउटपुट। मेरा फेस हटाना, ठीक है, रहने दो। We have classified cost with respect to behavior with respect to output. How does cost behave when the quantity increases? Variable cost will go up, fixed cost will remain the same. So उसके बेसिस पे थर्ड वाला क्लासिफिकेशन है। तो जो फर्स्ट वाला क्लासिफिकेशन था टाइप 1, दैट वाज टाइप 1 वाज नेचर, type 2 was function, और type 3 was behavior, WRT with respect to output, behavior with respect to Q। मैंने लिखा है behavior with respect to Q, behavior with respect to quantity, कि quantity के साथ क्या behavior है। तो variable cost increases with quantity proportionately, fixed cost
It does not depend on quantity, it remains the same no matter what the output. So ये तीन तरह से कॉस्ट का क्लासिफिकेशन हो सकता है, नेचर, फंक्शन एंड बिहेवियर विथ रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी. व्हाट इज योर फर्स्ट गेस? कंपनीज लोग रियल लाइफ में जो लोग फॉलो करते हैं यूएस गैप या आईएफआरएस या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंड एएस, वो लोग को किस तरह से कॉस्ट दिखाते हैं? वो लोग टाइप 1 या टाइप 2 या टाइप 3? कंपनीज इन रियल लाइफ इनकम स्टेटमेंट्स आर यूजुअली ऑफ टाइप 1 और टाइप 2 और टाइप 3. Yes, please, can you guess? In real life, companies as per accounting standards requirement, they are required to show their income statement based on type 1 or type 2 or type 3. Okay, so mostly all people are saying type 2, some are saying type 1 and very extreme people are saying type 3. So answer is type 2 and type 1. Answer is type 2 and type 1. Most companies show it based on type 2. But some companies can also use type 1. IFRS US GAAP allows both type 1 and type 2. IFRS allows both type 1 and type 2. If you ask me, सर सबसे ज़्यादा कौन सा यूज़ होता है? टाइप 2 यूज़ होता है और उसके बाद टाइप 1 यूज़ होता है. और वेरिएबल और फिक्स का क्लासिफिकेशन हार्डली कंपनीज लोग करते हैं. कोई कंपनी बहुत ही ट्रांसपेरेंट है तो वो जो टाइप 3 है उसको एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर फुटनोट में दिखाता है. किसी कंपनी को बहुत ही पारदर्शी होना है, ट्रांसपेरेंट होना है, तो टाइप 3 को फुटनोट में दिखाता है. बट यू विल नॉट फाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन टाइप 3. एंड दिस इज अ ग्रेट सेटबैक फॉर एनालिस्ट कम्युनिटी. बिकॉज इफ यू हैव नॉट फॉरगॉटन, ये चैप्टर क्या चल रहा है, इस चैप्टर में एनालिसिस करके हम लोग फोरकास्ट करना जाएंगे कि फ्यूचर में कॉस्ट क्या लगेगा. और फ्यूचर में फोरकास्ट करने का सबसे इजी तरीका है टाइप 3. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेल यू that revenue next year will go up by 20%. If I tell you that revenue next year will go up by 20%, तो revenue 1200 हो जाएगा. ठीक है, revenue 1200 हो जाएगा. तो वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगा? वो भी जनरली 20% बढ़ेगा. वेरिएबल कॉस्ट जो है वो भी उसी रेट से बढ़ेगा जनरली. साहब जनरली क्यों बोले? जनरली इसलिए बोले बिकॉज हो सकता है जिस सप्लायर से माल खरीदते हैं वो माल का पर रेट चेंज कर दे, पर यूनिट का रेट, वो एक अलग बात है. बट मोटा मोटी वेरिएबल कॉस्ट जो प्रोपोर्शनेटली बढ़ जाएगा, 240 हो जाएगा. ठीक है, तो इट इज़ नॉट मैथ गोइंग ऑन कि 240 ही होगा क्या. ठीक है, लेबर रेट सेन तेन चेंज हो सकता है, बट मोटा मोटी 20% बढ़ेगा. तो वेरिएबल कॉस्ट वैसा होता है. फिक्स कॉस्ट वैसे तो सेम रहना चाहिए, बिकॉज आपने ही तो बोला सर क्वांटिटी बढ़ने से फिक्स कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. बट सिंस मैं नेक्स्ट ईयर चला गया ना, तो हो सकता है जो हमने जगह रेंट पे ले रखी है उसका रेंट बढ़ेगा, क्लॉज में था. ठीक है, तो फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड नहीं रहता है. Fixed cost over a time period rises as per inflation and contractual agreements. Then why it is called fixed? Because it is fixed with respect to quantity. यानी कि अगर इसी साल अपने कुछ स्ट्रैटेजी करे जिससे अपना क्वांटिटी 1000 से 1200 हो जाए इसी साल, तो उस केस पे फिक्स्ड कॉस्ट विल रिमेन द सेम. समझ गए? तो फिक्स्ड कॉस्ट इज कॉल्ड फिक्स्ड बिकॉज इट्स फिक्स्ड विथ रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी, नॉट फिक्स्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. फिक्स्ड कॉस्ट ऑल्सो चेंजेस. आर यू अंडरस्टैंडिंग? बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स एकदम बेसिक से आ रहे हैं, दे मे नॉट बी क्लियर अबाउट इट एंड दिस मे बी अ बिल्डिंग ब्लॉक का प्रॉब्लम. बिकॉज आपका फ्यूचर आपको परेशान करेगा कि यार फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड रहना चाहिए था. फिक्स्ड कॉस्ट वैसे फिक्स्ड नहीं होता है. ओके, फिक्स्ड कॉस्ट इज फिक्स्ड विथ रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी, नॉट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. रेंट वगैरह चेंज होता है. तो आप लोग नीचे लिखो, मैं नहीं लिखा रहा हूं, आप लोग नीचे लिखो. As per US GAAP and IFRS, you are writing as per US GAAP and IFRS, as per US GAAP and IFRS, comma, companies are required to show income statement. Companies are required to show income statement either using type 1 or type 2. Either using type 1 or type 2. Dash. Generally type 2 is most popular. Generally type 2 is most popular. Generally type 2 is most popular. Is most popular and suitable for comparison with other firms. And suitable for comparison with other firms.
suitable for comparison with other firms. Full stop. Suitable for comparison with other firms. Full stop. Para change. For the purpose of predicting future costs in financial model. For the purpose of predicting future costs in financial model. For the purpose of predicting future costs in financial model, comma, type 3 is the best. Type 3 is the best for the analyst. Type 3 is the best for the analyst. But unfortunately, type 3 information is not available. Type 3 information is not available and has to be guessed. Type 3 information is not available and has to be guessed. Guess करना पड़ेगा. Now guess कैसे किया जाता है? I am asking you. प्लीज बताइएगा आपके ख्याल से जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, माने आई एम लुकिंग एट ए इनकम स्टेटमेंट जो कि फंक्शनल है, टाइप 2 है, तो जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो आपके ख्याल से ज्यादातर वेरिएबल होता है कि फिक्स्ड होता है? व्हाट डू यू थिंक? जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो ज्यादातर वेरिएबल होता है कि फिक्स्ड होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में रॉ मटेरियल कॉस्ट आएगा, फैक्ट्री के लेबर का कॉस्ट आएगा, है ना? तो ये सब कॉस्ट जनरली वेरिएबल होता है कि फिक्स्ड होता है? तो संस्कृति तालीवाल का आंसर रॉन्ग है, सौरभ का आंसर करेक्ट है, मोक्षा का आंसर करेक्ट है, प्रियांशु का करेक्ट है, सुधांशु का करेक्ट है, तन्मय का करेक्ट है, आफ्ताब का करेक्ट है, शशांक का करेक्ट है, ऋषभ गुप्ता का रॉन्ग है, राजीव का करेक्ट है, अंकित का करेक्ट है, 90% लोगों का करेक्ट है. मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ये सब वेरिएबल कॉस्ट होते हैं. मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट जो फैक्ट्री में लगते हैं ना, ये सब वेरिएबल कॉस्ट होते हैं. द फील इज दैट सर ये तो आउटपुट से पूरा कनेक्टेड है, ये तो पूरा का पूरा आउटपुट से कनेक्टेड है. वो लोग आउटपुट ही तो बना रहे हैं, वो लोग ऑफिस पे बैठ के काम थोड़ी कर रहे हैं. जो ऑफिस पे बैठ के काम कर रहा है वो आउटपुट से कनेक्टेड नहीं है. ओके, जो रेंट लग रहा है ऑफिस का वो आउटपुट से कनेक्टेड नहीं है. तो मोस्टली COGS इज वेरिएबल. लिखिए जो आपने गेस्ट लिखा ना, इट हैज टू बी गेस्ट. गेस्ट को सर्कल कर दो, गेस्ट को सर्कल कर दो. जो लास्ट वर्ड था ना, इट हैज टू बी गेस्ट, तो गेस्ट को सर्कल कर दो और सर्कल करके स्टार दे दो. स्टार दे के नीचे बुलेट, फर्स्ट बुलेट, COGS इज मोस्टली वेरिएबल. COGS इज मोस्टली वेरिएबल. बट सर आपने ही तो बोला था कि COGS में डेप्रिसिएशन आएगा प्लांट का, तो वो तो फिक्स्ड हो गया. तो मैंने लिखा है मोस्टली वेरिएबल. तो बच्चे की जान मत लो, गेसिंग चल रहा है, उस पर डेप्रिसिएशन भी है. हो सकता है फैक्ट्री का स्पेस जहां प्रोडक्शन चल रहा है उसको भाड़े पे ले रखा है, तो रेंट इज ऑल्सो फिक्स्ड. तो COGS में फिक्स्ड कंपोनेंट्स भी है, डेप्रिसिएशन बीइंग मोस्ट पॉपुलर. रेंट भी हो सकता है फैक्ट्री प्रीमाइसेस का. तो आई एम नॉट सेइंग इट इज वेरिएबल, डोंट आर्ग्यू विथ मी लेटर ऑन. इट इज मोस्टली वेरिएबल. गेस कर रहे हैं तो क्या करें? ठीक है, तो सर अगर मोस्टली है तो एग्जैक्टली कैसे पता लगाएंगे? तो पहली बात तो है एकदम एग्जैक्टली तो पता चल भी नहीं सकता है, इट्स एन अप्रॉक्सीमेशन गोइंग ऑन. एंड एकदम एग्जैक्टली पता करने के लिए बहुत इजी है, आप सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट का एक मॉडल रन कर सकते हो. सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट का, कि वेरिएबल कॉस्ट को फोरकास्ट करें विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का और सेल्स का. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड Y हो गया और सेल्स X हो गया. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड Y हो गया और सेल्स X हो गया, तो Y इज इक्वल टू A प्लस BX. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड Y हो गया और सेल्स X हो गया. जैसे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होते हैं ना, Y इज इक्वल टू A प्लस BX, तो आपका वैसा इक्वेशन आएगा अगर मॉडल में फीड करेंगे. तो सब मेरे को मॉडल करना आता नहीं है, मॉडल अपने स्टेटिस्टिक्स में है, तो स्टेटिस्टिक्स सर अभी किए नहीं है, तो कोई बात नहीं बाद में करेंगे. तो अभी क्या करें? फील ले, फील. ठीक है, तो X हो गया सेल्स पास्ट में और Y हो गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. उन दोनों का एक रिग्रेशन मॉडल किए स्टैट्स में, और अपने आप ही एक्सेल में ही होता है. तो इन दैट केस वो बता देगा A कितना B कितना. तो A हो गया फिक्स्ड कॉस्ट, B हो गया वेरिएबल कॉस्ट. ओके, पोर्शन सेल्स से रिलेटेड. Y इज इक्वल टू A प्लस BX. फिर आप X को पुट करेंगे, सेल्स का फोरकास्ट 1200 नेक्स्ट ईयर, तो COGS निकल जाएगा.
तो COGS निकल जाएगा y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। सर जरूरी थोड़ी है स्ट्रेट लाइन होगा, ये भी तो हो सकता है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, हो सकता है, दैट्स क्वाड्रेटिक मॉडलिंग। तो सर ये सब मॉडलिंग जो है इन सब का थोड़ा आइडिया अपने सिलेबस में है क्या? हाँ है सर, मेरे क्लास 11-12 में जोर से ये सब था, हम लोग कॉलम बनाए करते थे लीस्ट स्क्वायर मेथड, क्या वो सिलेबस में है क्या? नहीं है। हम लोग के स्टैट्स में फालतू का कॉलम नहीं बनवाता है, दे टीचर स्टैट्स इन सच अ मैनर जो रियल लाइफ में यूज आ सके। ठीक है, 2 मिनट रुक रहा हूं कि किसको किसको क्या क्या बोलना है। जो लोग को वो बोलना है कि वीडियो बफर कर रहा है, वो इक्का दुक्का जिनका होता रहता है, वो दूध भात इग्नोर्ड, कुछ नहीं किया जा सकता उसका। बाकी जिसको जो बोलना है बोल सकते हैं। 2 मिनट मेरा रेस्ट भी हो जा रहा है, एट द सेम टाइम अपॉर्चुनिटी। संस्कृति, आर यू इन द फर्स्ट ईयर? संस्कृति, वेर आर यू फ्रॉम? दिल्ली, बॉम्बे, सिलीगुड़ी, गुवाहाटी, पटना, चंडीगढ़, पंचकुला, सोनीपत, रोहतक, where are you from? Priya is saying, can't you make a group of online students? No, because I can't manage. I have seen it all in my 30 years of teaching. मैंने ये सारा चीज़ देखा है। ग्रुप बना के क्या हाल होता है? अपना अपना ग्रुप बनाओ, ओके? अपना अपना ग्रुप बनाओ, कोई हालत में हम लोग वो ग्रुप नहीं बनाते हैं। तो संस्कृति इज फ्रॉम मथुरा, संयम, राम राम सर, राधे श्याम, राम राम। Ajay is from Pune. Sir, can I do NISM series? You can do NISM series. It will not create any difference in your life. But it's not bad, but it's not good also. माने ऐसा कुछ आपका वैल्यू एडिशन होगा नहीं। I am from हरियाणा, हिसार, प्रिया बोल रही है। I am from उज्जैन, भूमि, महाकाल। Tanmay is from Punjab, Aryan is from Kolkata, Anuradha is from Saudi Arabia, सिलीगुड़ी से है, चेन्नई से है, मैं नाम पढ़ नहीं पाया इतनी देर में, जयपुर, जमशेदपुर। ओके, somebody is doing the class from New York. So my daughter is close to New York in Ithaca. What time is it? 11:30 घंटे का डिफरेंस आई थिंक। So we can imagine at what time is it at your place. ओके, बढ़िया 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 बढ़िया, ठीक है। सो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है क्या? प्लीज बताइए, समझ में आ रहा है क्या? बिकॉज आई एम नॉट रशिंग, मैं भागने के कोई मौके में नहीं हूं कि मेरे को कल कंप्लीट करना है, ऐसा कोई नहीं है मेरा। ठीक है, ये बेस खराब होने से पूरा खराब हो जाएगा। ओके, बहुत बढ़िया। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मोस्टली वेरिएबल है, मोस्टली को सर्कल कर सकते हैं, यानी कि एक्चुअली पूरा वेरिएबल नहीं है, कुछ फिक्स्ड कंपोनेंट भी होगा, जैसे रेंट डिप्रिसिएशन, उसका मॉडलिंग किया जाता है। तो आपको जो अच्छा लगना है, एक्स्ट्रा लिखना है, आप नीचे लिख सकते हैं। थोड़ा सा फिक्स्ड कंपोनेंट भी होगा, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स सर बोल रहे थे। ओके, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स सर बोल रहे थे। ठीक है, अभी CFA के साथ और कोई प्रोग्राम नहीं करना चाहिए। शुरू के 3 मंथ्स 4 मंथ्स जो आपका चालू हुआ है, ठीक है, लोग पूछ रहे क्या प्रोग्राम करें, अभी नहीं, पहले 3 मंथ्स देखो CFA का पिकअप कैसा हो रहा है, आपकी कॉलेज स्टार्ट हुई होगी या वॉट एवर इट इज़, या हो सकता है किसी का ग्रेजुएशन हो चुका हो। अगर ऐसा लगे ना सर CFA तो ऐसे पकड़ रहा हूँ मैं, इट इज़ कमिंग इन माई कमांड, तो इन दैट केस अपने डिस्कस करेंगे क्या चीज़ साथ में करना चाहिए। विल यू टीच ऑल दीज इन FDA, FSA अगेन लाइक बैलेंस शीट? इस तरह से नहीं पढ़ाएंगे। एक बैच को मैं बैच पकड़ता हूँ तो FSA में एक अलग स्पीड से जाएंगे। ठीक है, अभी इस बैच के लिए मैं पहली बार बता रहा हूँ, तो बिकॉज ऑफ विच आई एम गोइंग स्लो, नेचर वाइज, फंक्शन वाइज एंड बिहेवियर वाइज। ठीक है ना? ओके, अब लोग दाया बाया एरिया में जा रहे हैं, सर हम ट्रेडिंग कर सकते हैं क्या वगैरह, ये वेबिनार इसका नहीं है, किसी दिन करेंगे अपने। सौरभ कुमार इज सेइंग y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, समझ नहीं आया सर। तो सौरभ, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स समझाने के लिए मेरे को पूरा यू टर्न मार के कुछ और में जाना पड़ेगा, तो वो अभी जा नहीं पाऊंगा। ठीक है, वो अभी जा नहीं पाऊंगा y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स में। ठीक है, नॉट पॉसिबल। चलिए कंटिन्यू करते। तो आपने फर्स्ट बुलेट लिखा है, आपने फर्स्ट बुलेट लिखा है कि COGS मोस्टली वेरिएबल है। आगे सेकेंड बुलेट,
SGA, SGA, SGA is mostly fixed. SGA is mostly fixed, but especially the selling part contains some variable component. SGA is mostly fixed, but especially the selling part contains some variable component. SGA is mostly fixed, but especially the selling part contains some variable component. फॉर एग्जाम्पल आप 10% कमीशन देते हो सेल्स पे किसी को, तो 10% कमीशन जो सेल्स पे देते 10% ऑफ सेल्स, वो तो पूरा वेरिएबल हो गया. ओके हम अगर कमीशन देते हैं किसी को 10% सेल्स पे, वो तो पूरा का पूरा वेरिएबल हो गया 10%. तो सेलिंग वाला पार्ट काफ़ी वेरिएबल होता है, सभी का सभी सेमी वेरिएबल टाइप. इट्स अ क्वेश्चन ऑफ ज़्यादा क्या कमती क्या. एंड और एक चीज़ बता दे, कभी भी फोरकास्टिंग में आप 100% एक्यूरेट नहीं हो सकते हो. इट्स अ क्वेश्चन ऑफ मोटा मोटी करेक्ट हो, ठीक है ना. तो वैसे लोग जूझ के, मॉडलिंग लगा के, स्टैट्स लगा के, बुद्धि लगा के, जजमेंट लगा के फोरकास्ट करते रहते हैं, पास्ट ट्रेंड को देख के फोरकास्ट करते रहते हैं, ठीक है. जब व्हेन वी टॉक अबाउट फोरकास्टिंग तो इन दैट के उसकी और बातचीतें होगी. तो ये थोड़ा आइडिया था कि COGS और SGA के बारे में. R&D मोस्टली फिक्स्ड होता है, लिख दो थर्ड बुलेट. R&D इज मोस्टली फिक्स्ड, उसका कोई क्वांटिटी से कोई रिलेशन नहीं है. R&D इज मोस्टली फिक्स्ड, उसका आउटपुट से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है. एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. आपसे ऐसे चुन चुन के पूछेगा नहीं, डोंट वरी, इसके बारे में बता, इसके बारे में बता. और LOS का नाम याद है ना, LOSD इज ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी एंड वर्किंग कैपिटल. तो आपको अभी इंटरेस्ट वगैरह का सोचना ही नहीं है कि सर आप इंटरेस्ट का बात नहीं कर रहे हैं. वैसे इंटरेस्ट इज अ फिक्स्ड फाइनेंशियल एक्सपेंस, इट हैज़ नो रिलेशन विद आउटपुट. इट अ फिक्स्ड फाइनेंशियल एक्सपेंस होता है इंटरेस्ट, बट उसका बात ही नहीं करेंगे, अपना ऑपरेशंस पे बात चल रहा है. EBIT तक का मेरा फोकस है अभी, ठीक है. तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पता चला कि एक्सपेंस क्लासिफिकेशन, कॉस्ट क्लासिफिकेशन कैन बी नेचर वाइज, कैन बी एक्सपेंस फंक्शन वाइज, कैन बी बिहेवियर विथ रिस्पेक्ट टू आउटपुट. लिखिए प्लीज पैरा चेंज. पैरा चेंज फ्रॉम द अबव, फ्रॉम द अबव, from the above comma we conclude, from the above comma we conclude, from the above comma we conclude that expenses can be classified in three ways. Expenses can be classified in three ways. Dash number one, dash number one, on the basis of their nature, on the basis of their nature, ठीक है. जैसे मटेरियल कॉस्ट, एम्प्लॉई कॉस्ट, रेंट, ये सब नेचर. वो कहाँ लगता है, प्रोडक्शन में लगता है कि ऑफिस पे लगता है, उससे मतलब नहीं है, जस्ट वो मटेरियल कॉस्ट है. नंबर टू, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, ये टाइप 2 था. ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, on the basis of their function, that was type 2. And तीसरा, third, on the basis of their behavior with respect to output, on the basis of their behavior with respect to output, on the basis of their behavior with respect to output, their behavior with respect to output, जो फिक्स्ड और वेरिएबल वाला था, ठीक है ना. ओके अब इससे आप लोग को यही पता चला कि जिनको वो क्लियर नहीं था कि ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, वो क्लियर हो गया. प्लीज़ बताना इस कंपनी का ऑन द बोर्ड, व्हाट इज़ द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, व्हाट इज़ द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, व्हाट इज़ द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन. वेट कर रहा हूँ. व्हाट इज़ द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, व्हाट इज द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन. किसी का जवाब नहीं आ रहा है. प्रेम का जवाब आया, शशांक का आया, शशांक का रॉन्ग आया, ऋषभ गुप्ता का रॉन्ग आया, ऋषभ का खराब दिन चल रहा है. ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज 70%. ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज 70%. और जिन्होंने भी गलती जवाब दिए अपने आप समझ में आ जाएगा उन लोग को.
व्हाट इज द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन? मार्जिन पूछा है अंकित कुमार, अमाउंट नहीं पूछा है. व्हाट इज द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन? 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 अब सबका सही जवाब आ रहा है 20%. ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज 70%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज 20%. मैंने फॉर्मूला नहीं बताया. अपने में से कोई स्टूडेंट है क्या जिसको समझ में नहीं आया? मैंने फॉर्मूला नहीं बताया, बट आई थिंक समझ में आ रहा होगा. बाई चांस किसी को समझ में नहीं आया, जीपी मार्जिन सर कैसे निकाले 70%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सर कैसे निकाले 20%? बाई चांस किसी का खराब दिन चल रहा है और समझ में नहीं आया. मार्जिन का मतलब होता है परसेंटेज ऑफ सेल्स. मार्जिन का मतलब होता है परसेंटेज ऑफ सेल्स. तो जब ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बोल रहा हूं, भाषा सक्सेना को समझ में नहीं आया. भाषा सक्सेना, ओके, भाषा सक्सेना को समझ में नहीं आया. ऋषभ को अब समझ में आया, ठीक है. ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन मतलब ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स का कितना परसेंटेज है? 700 बाय 1000 इंटू 100. भाषा, हम लोग मेरी क्लासेस में हम लोग फॉर्मूला को एकदम यूज नहीं करते हैं, बिकॉज रियल लाइफ में फॉर्मूला यूज नहीं होता है. तो अगर कोई बंदा है जिसको फॉर्मूला बहुत पसंद है, ऐसा मैं तो बचपन से हमेशा फॉर्मूला यूज करती थी, मेरे को वैसे ही पसंद है, तो आप वैसे कर सकते हैं, बट हम लोग क्लास में नहीं करेंगे, ठीक है. हम लोग फील्ड पे जाते हैं. मार्जिन मीन्स परसेंटेज ऑफ सेल्स. तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बोल रहा हूं, आपका ध्यान जाना चाहिए जीपी पे. जीपी कितना है? 700. सेल्स क्या है? 1000. तो 700 1000 का क्या परसेंटेज है? 70%. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? जो इंटरेस्ट के पहले होता है, ओके, जो इंटरेस्ट के पहले होता है उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बोलते हैं. तो वो ईबीआईटी होता है, ईबीआईटी, ओके. तेजस सिंह बोल रहा है नहीं समझा सर. तो तेजस सिंह मेरा जवाब है और नहीं समझा पाएंगे. अगर ये नहीं समझा तेजस, तो और नहीं समझा पाएंगे अभी तो, ठीक है. माने पारबोना बंगाली में बोलते हैं कि दम नहीं है मेरा, कैसे समझाऊं, कौन से भाषा में समझाऊं. फिर हो सकता है आप ये बोलना चाह रहे हैं सर वैसे समझाइए. समझ गए कैसे? और वैसे समझा तो देंगे पर मैं वैसे करने वाला नहीं हूं, ओके. तो तेजस सिंह हैज गिवन मी अ सरप्राइज, जोर का सरप्राइज दिया है तेजस सिंह ने मेरे को, बोल के कि नहीं समझे, ओके. भाषा को समझ में आ गया. आई डोंट नो तेजस के क्या हुआ, उनका वीडियो डीरेल हो गया क्या, आवाज नहीं गई क्या? वो चाह रहे मैं ऐसे बताऊं, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, देखो बच्चों, जीपीएम परसेंटेज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100 इक्वल टू 700 डिवाइड बाय 1000 इंटू 100 इक्वल टू 70%. ऐसे हम नहीं पढ़ाते हैं. आई डोंट टीच दिस वे. और जो ऐसे पढ़ता है वो जीवन में तरक्की नहीं कर सकता, ये भी श्योर है, ठीक है. तो वी टीच इट ऑन द बेसिस ऑफ रिदम, इंट्यूशन. फॉर्मूलाज डोंट सीम टू बी फॉर्मूलाज. सब मेरे पढ़ने का तरीका बचपन में यही था, तो बचपन को छोड़ दो. क्या तुम कमाना चाहते हो? व्हाट डू यू वांट टू अर्न? डू यू वांट टू अर्न 20,000, 30,000, 40,000 per month, or do you want to earn 4 lakh per month or 40 lakhs per month? If you want to earn 4 lakh, 40 lakhs per month, that way type, you got to upgrade yourself. I will help you out in doing the upgradation, but your mentality has to be proper. Okay. So we were saying gross profit margin is 70%, operating profit margin is 20%. Also ये भी हो सकता है तेजस की आपका फर्स्ट क्लास है, अचानक से आपको मैसेज आया, आपको लगा चल आज लाइव क्लास करते हैं. ऐसे आप चैप्टर के बीच में नहीं घुस सकते हो. कोई भी पर्सन को चैप्टर के बीच में इस तरह से नहीं घुसना चाहिए, बिकॉज देन मेरे से कनेक्शन उसका बैठा नहीं है एंड ही विल इवैल्यूएट मी इन रॉन्ग मैनर. ये छठी क्लास है, मैसेज में लिखा हुआ था कि 5 क्लास करके ही छठी क्लास से बैठना. प्लीज बताइए व्हाट इज द प्री टैक्स मार्जिन? 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 वेट कर रहा हूं. व्हाट इज द प्री टैक्स प्रॉफिट मार्जिन? What is the before tax pre-tax profit margin? Pre-tax profit margin.
यानी प्री टैक्स प्रॉफिट क्या है 150, 150 बाय 1000 15%. व्हाट इज द नेट प्रॉफिट मार्जिन? 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 Net profit margin is 12%. Net income divided by sales. So it is not possible, it shouldn't be possible that कभी जिंदगी में आप भूल जाए कि यार मार्जिन क्या था. मार्जिन था परसेंटेज ऑफ सेल्स, सेल्स का परसेंटेज, दैट्स कॉल्ड मार्जिन. ओके, सेल्स का परसेंटेज, दैट्स कॉल्ड मार्जिन. जीपी मार्जिन, ओपी मार्जिन और पीबीटी मार्जिन और पैट मार्जिन से भी अपने को ज्यादा मतलब नहीं है, बिकॉज हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी डिस्कस कर रहे हैं. और एक वर्ड होता है उसको बोलते हैं मार्कअप. सुनना प्लीज. और एक वर्ड होता है उसको बोलते हैं मार्कअप. क्या बोलते हैं? मार्कअप. मार्कअप क्या होता है? जो हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट को सीओजीएस का परसेंटेज दिखाते हैं. इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, पर बुक में लिखा हुआ है. मार्कअप मतलब ग्रॉस प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सीओजीएस. इस केस में 200% से ज्यादा है. आपको दिख रहा है? जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो सेल्स के बजाय अगर कॉस्ट का परसेंटेज निकालें, ग्रॉस प्रॉफिट को सेल्स के बजाय अगर कॉस्ट का परसेंटेज निकालें तो 700 बाई 300 इंटू 100. निकालने में शर्म आ रहा होगा. 700 बाई 300 इंटू 100, 200 कितना परसेंट? 700 बाई 300 इंटू 100, 233%. क्या? 233% इज द मार्कअप. 233.33% इज द मार्कअप. मार्कअप काम नहीं आएगा वैसे. मार्कअप कोई काम नहीं आएगा, ऐसी आपके जिज्ञासा के लिए. मार्कअप जब आप कॉस्ट का परसेंटेज निकालते हैं जीपी को पता लगाने के लिए कि जो माल खरीदता है ना उसको कितने मार्कअप में बेचता है. ओके, इतना ज्यादा मार्कअप यूजुअली बिजनेसेस में नहीं होता है. यहां मैं फिगर्स मन से लिख रहा था तो आपको मार्जिन समझ में आ गया. ठीक है, नीचे लिख लीजिए, नीचे लिख लीजिए. फोकस ऑन टाइप 2 पैराचेंज. फोकस ऑन टाइप 2. Focus on type 2 dash, next line, GPM gross profit margin dash 20%, OPM operating profit margin dash, sorry, GPM क्या था? 70%. GPM gross profit margin 70%. फिर OPM operating profit margin 20%. OPM operating profit margin 20%. Pre-tax profit margin 15%, pre-tax profit margin 15% and net profit margin 12%. Net profit margin 12%. इस पे GPM, OPM, NPM commonly used है. GPM, OPM, NPM commonly used है. GPM, OPM, NPM. तो विशेष पूछ रहा है कि एग्जाम में ये शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं क्या? तो विशेष शायद भूल गया है कि अपना मल्टीपल चॉइस एग्जाम है. आप एग्जाम में यूज कैसे करोगे? लिखोगे कहां? इट्स अ मल्टीपल चॉइस एग्जाम. इट्स अ मल्टीपल चॉइस एग्जाम. ओके, विशेष बोल रहा है सर इज इट पॉसिबल दैट क्वेश्चन में शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ आएगा? नहीं आएगा. क्वेश्चन में फुल फॉर्म लिखा हुआ आएगा. क्वेश्चन में फुल फॉर्म लिखा हुआ आएगा. ओके, विशेष तो अब पूछ रहा है सर क्या इंडस्ट्री में यही शॉर्ट फॉर्म यूज किया जाता है? यस, इंडस्ट्री में ये शॉर्ट फॉर्म यूज किया जाता है. तो 3 क्वेश्चन विशेष ने पूछा. पहला क्वेश्चन में वो भूल गया था कि मल्टीपल चॉइस एग्जाम है, कुछ लिख के नहीं आना है, कोई टेबल नहीं बनाना है. अगर किसी को टेबल पसंद नहीं है ना, सर मेरे को ये सब पसंद नहीं है जो आप लिखे, बहुत बढ़िया, ये टेबल आपको बनाना भी नहीं है. तो सब फिर अपने बनाते क्यों है? ये इंटरनलाइज करने के लिए चीजों को. हवा में बोलेंगे ना विदाउट नंबर्स तो बैठेगा नहीं. हम लोग बैठाते हैं चीजों को, ठीक है ना, और बाकी लोग भागते हैं. वी आर ट्राइंग टू सीमेंट द सेम इनसाइड योर दिस थिंग. तो जीपी मार्जिन, ओपी मार्जिन, एनपी मार्जिन, ठीक है. तो 70%, 20%, प्री टैक्स मार्जिन 15%, नेट प्रॉफिट मार्जिन 12%. बहुत अच्छे, ठीक है. ऑब्वियसली सेट्रिस पेरिबस, आप कौन से कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहोगे जिनका मार्जिन हाई है कि लो है? सेट्रिस पेरिबस माने अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट. आप किन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहोगे जिन कंपनीज का मार्जिन हाई है कि लो है? प्लीज टेल मी. सेट्रिस पेरिबस,
other factors remaining constant, बाकी चीज का डिस्कशन नहीं हुआ है. You would like to invest in a stock which has high margin or low margin? High margin. So I gave the example of Apple, I gave the example of Zara. I told that they are cost leader, okay, but they are not price leaders. They are not selling at the lowest price. They are charging the highest price in their category and having big fat margins. That's their strategy. जो समझता नहीं है ना सर ये स्ट्रैटेजी आप क्या बोलते हैं, ये सब स्ट्रैटेजी का डिस्कशन है. बीइंग अ कॉस्ट लीडर, डिसाइडिंग नॉट टू बिकम अ प्राइस लीडर, ठीक है, दैट्स द स्ट्रैटेजी टू हैव बिग फैट मार्जिन्स. जबकि डीमार्ट इज अ कॉस्ट लीडर एंड अ प्राइस लीडर, कि हम लो कॉस्ट, लोएस्ट कॉस्ट है, एट द सेम टाइम लोएस्ट प्राइस पे बेचेंगे, हमारे जैसा दाम कहीं और मिलेगा नहीं, ठीक है. सो दैट इज अ वॉल्यूम बिजनेस. और उसमें भी ब्रेन क्या है, काश लोग आए तो सही और प्राइवेट लेबल वाला माल खरीद लें. प्राइवेट लेबल में मार्जिन सा हाई. ओके, कोलगेट का टूथपेस्ट बेच के डीमार्ट हार्डली कुछ कमा रहा होगा, एक कोलगेट बेच रहा होगा शायद 2 रुपया बच रहा होगा, वैसा वाला हाल है, ठीक है. वेफर थिन मार्जिन से उसको डीमार्ट को कोलगेट और शैम्पू जो ब्रांडेड है वो बेच के, पर उसके कारण पब्लिक को अट्रैक्ट कर रहा है और प्राइवेट माल बेच रहा है. एवरीबडी इज डूइंग दिस. दिस इज द रिटेल बिजनेस. ओके, दिस इज द रिटेल बिजनेस. यू अंडरस्टैंडिंग? ओके, विशेष आज जोश में है. विशेष इज आस्किंग कि सर कोई ऐसा भी बिजनेस है क्या जो कॉस्ट लीडर नहीं है, मतलब कॉस्ट उसका हाई है और तब भी प्राइस लीडर है. कॉस्ट लीडर नहीं है, कॉस्ट हाई है और तब भी प्राइस लीडर है. चीज समझो, क्वेश्चन उसका अच्छा है. कोई ऐसा बिजनेस जो कॉस्ट लीडर नहीं है, उसका कॉस्ट हाई है, फिर भी वो सबसे कमती दाम पे बेचता है, तो पहला बात तो वो डूबेगा. ऑल द स्टार्टअप्स फॉल इनटू दैट कैटेगरी. और इफ आई टॉक अबाउट इट, इस बिजनेस में हो गया अपना जेट एयरवेज. एक टाइम पे था जेट एयरवेज, तो जेट एयरवेज जो है उसका कॉस्ट हाई था, फिर भी इट बिकेम अ प्राइस लीडर. बोला हम कमती दाम पे बेचेंगे, तो उड़ गया जेट एयरवेज, स्वाहा हो गया. ओके, जेट एयरवेज स्वाहा हो गया. इट इज नो लॉन्गर देयर ऑन दिस प्लैनेट. जेट एयरवेज कि आप कॉस्ट लीडर नहीं हो तब भी आप नीचे दाम पे बेचोगे. अभी जो मेरे को ध्यान आ रहा है, ऑफ कोर्स आप जीपीटी ये सबको यूज पूछ सकते हो कि कॉस्ट लीडर बट सॉरी विच इज नॉट अ कॉस्ट लीडर बट विच इज अ प्राइस लीडर. बहुत सारे स्टार्टअप्स इस कैटेगरी में फॉल करेंगे. स्टार्टअप्स, ठीक है, दे विल फॉल इन दिस कैटेगरी. दे आर बर्निंग, कैश बर्न कर रहे हैं वो लोग, ठीक है, लॉसेस खा रहे हैं इस उम्मीद में कि कस्टमर को पटा लेंगे और पटाने के बाद तो कस्टमर जो है इनर्शिया में आ जाएगा, ठीक है ना, वैसा वाला. एनीवेज, तो अपने को जीपी मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन समझ में आया. वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया. एक और पार्ट बोलना था, बोलना ही भूल गया. स्टार्टिंग इससे करना चाहिए था. हम लोग यूजुअली खर्चे को कॉस्ट माने एक्सपेंस नहीं बोल रहा हूं, कॉस्ट माने कोई भी जो कॉस्ट लगता है वो कॉस्ट को 3 में क्लासिफाई करते हैं. ऑपरेटिंग कॉस्ट, फाइनेंसिंग कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट. ऑपरेटिंग कॉस्ट, फाइनेंसिंग कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट. ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट, 3 तरह का कॉस्ट, ठीक है. अभी कॉस्ट बोला मैंने, एक्सपेंस नहीं बोला. एक्सपेंस वो जो पीएल में डेबिट होता है, कॉस्ट माने वो जो लगता है. तो अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी बाई किया, वो कौन सा कॉस्ट है, ऑपरेटिंग की, फाइनेंसिंग की, इन्वेस्टमेंट. अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी बाई किया 20 करोड़ का, वो कौन सा कॉस्ट है, ऑपरेटिंग या फाइनेंसिंग या इन्वेस्टमेंट. आपने प्लांट एंड मशीनरी बाई किया, वो कौन सा कॉस्ट है, ऑपरेटिंग या फाइनेंसिंग या इन्वेस्टमेंट. सुधांशु का रॉन्ग है, ऑपरेटिंग या फाइनेंसिंग या इन्वेस्टमेंट. सबका राइट जा रहा, राइट जा रहा, राइट जा रहा, राइट जा रहा है. ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट. It is an investment cost, investment in property, plant and equipment, long-lived assets, balance sheet का asset side, okay? जो long-lived assets buy करते हैं अपने property, plant and equipment, वो सारा का सारा investment activity है. investment, you are buying long-term assets, investment activity, ठीक है, तो जिससे फायदा 10 साल तक होगा and therefore उनका cost को PL में डेबिट किया जाता है 10 सालों में in the form of depreciation और amortization. सिस्टमैटिक राइट ऑफ इन द पीएल अकाउंट ऑफ लॉन्ग लिव्ड एसेट्स, ठीक है. तो उनका धीरे धीरे पीएल में डेबिट होता है बिकॉज ऑफ मैचिंग प्रिंसिपल, कि जब ये 10 साल तक हमको फायदा देगा तो पीएल में अभी डेबिट क्यों करें, ठीक है. तो इसको 10 साल हौले हौले डेबिट करेंगे. दैट इज व्हाट डेप्रिसिएशन इज. तो रिलेटेड टू लॉन्ग लिव्ड एसेट्स वी हैव इन्वेस्टमेंट कॉस्ट्स. रिलेटेड टू कैपिटल स्ट्रक्चर,
कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब डेट और इक्विटी से रिलेटेड जो कॉस्ट लगता है, डेट को अपने इंटरेस्ट देते हैं, इक्विटी को अपने डिविडेंड देते हैं, इक्विटी को बाईबैक करते हैं, वो सब जो कॉस्ट लगता है वो कॉस्ट कहां जाएगा? डेट को इंटरेस्ट देते हैं, रिपेमेंट करते हैं, इक्विटी को अपने डिविडेंड देते हैं, बाईबैक करते हैं, वो जो पैसा जा रहा है वो कहां जाएगा? ऑपरेटिंग या इन्वेस्टमेंट या फाइनेंसिंग? ऑपरेटिंग या इन्वेस्टमेंट या फाइनेंसिंग? इस बार सुधांशु करेक्ट है, इट इज फाइनेंसिंग, बिकॉज फाइनेंसिंग माने पैसा उठाना, फाइनेंसिंग माने पैसा उठाना। हु इज फाइनेंसिंग योर एजुकेशन? आपके पेरेंट्स। आपके पेरेंट्स के पास पैसा कहां से आ रहा है? या तो उनका जमा किया हुआ है, ठीक है, या फिर लोन लेके आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो खुद का जमा किया हुआ तो वो इक्विटी है उनका, लोन लेके पढ़ा रहे हैं तो वो डेट है उनका, ठीक है, उसको ब्याज देना पड़ेगा उनको। तो जो इंटरेस्ट देते हैं, जो डिविडेंड देते हैं वगैरह, ऑल दोज आउटफ्लोज आर फाइनेंसिंग कॉस्ट। विच कॉस्ट? फाइनेंसिंग कॉस्ट, फाइनेंसिंग। ऑल्दो व्हेन वी डू एफएसए, एफएसए में जब अपने पढ़ेंगे ना तो उस केस में देखेंगे कि अपने जो इंटरेस्ट कॉस्ट है उस पर कंफ्यूजन है। क्यों कंफ्यूजन है? बिकॉज पीएल अकाउंट में तो इंटरेस्ट कॉस्ट आया है, तो देखो तो एक बार ये जो बोर्ड पे पीएल अकाउंट में इंटरेस्ट कॉस्ट आया है कि नहीं आया? आया है। तो पीएल अकाउंट तो ऑपरेटिंग माना जाता है, पीएल अकाउंट तो ऑपरेटिंग माना जाता है ना कि ऑपरेशन इस साल का, तो बाय दैट लॉजिक से इंटरेस्ट कॉस्ट को तो आपने ऑपरेटिंग में दिखा दिया। तो यूएस गैप जो है वो इस लॉजिक को मानता है और इंटरेस्ट कॉस्ट को वो लोग ऑपरेटिंग कॉस्ट मानते हैं, फाइनेंसिंग नहीं मानते। और आईएफआरएस बोलता है ऑपरेटिंग या फाइनेंसिंग जैसे तेरा मन। ओके, आईएफआरएस जो है मन आपके मन पे छोड़ दिया है, ऑपरेटिंग या फाइनेंसिंग। पर यूएस गैप बोलते नहीं, सिंस पीएल में हम लोग दिखाए हैं इंटरेस्ट को तो हम लोग उसको ऑपरेटिंग मानेंगे। पर अभी हम लोग यूएस गैप आईएफआरएस नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट डूइंग यूएस गैप एंड आईएफआरएस राइट नाउ, एंड नॉर विल एनी पर्सन बी दुखी सर ने यूएस गैप आईएफआरएस बोला, हाई बा मेरे को तो आता ही नहीं है। अभी क्यों आना है आपको? एफएसए स्टार्ट कीजिए और लाइए, एफएसए बगल बगल में आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। मल्टीपल टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो बहुत मजा आएगा, एक का फायदा दूसरे में। ओके, एफएसए का स्टार्ट कर देना चाहिए लेक्चर्स धीरे धीरे, क्यूएम का भी। तो खैर वो एफएसए में जब होगा सो होगा। मैं कंसेप्चुअली बात कर रहा था, फाइनेंसिंग कॉस्ट जो है वो रिलेट्स टू द कैपिटल स्ट्रक्चर, डेट एंड इक्विटी को जो पे करते हैं। और ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या हो गया? लेबर कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट, रेंट, यूटिलिटीज, ये सारा का सारा जो ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट, फाइनेंसिंग कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट इजी है, पर लिख लो, बुक पे लिखा हुआ है। पैरा चेंज, पैरा चेंज नोट, पैरा चेंज नोट। all costs are classified into three buckets. All costs are classified into three buckets. All costs are classified into three buckets. Dash. Para change. First bullet, operating cost. First bullet, operating cost. ओके, रॉ मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ये सब SG&A, ये सब ऑपरेटिंग कॉस्ट है। नेक्स्ट बुलेट, तो एक मिनट, ऑपरेटिंग कॉस्ट लिख दो ब्रैकेट में, रिलेटेड टू करंट रेवेन्यू। ऑपरेटिंग कॉस्ट ब्रैकेट रिलेटेड टू करंट रेवेन्यू। ऑपरेटिंग कॉस्ट ब्रैकेट रिलेटेड टू करंट रेवेन्यू। नेक्स्ट, फाइनेंसिंग कॉस्ट। नेक्स्ट बुलेट, फाइनेंसिंग कॉस्ट। Financing cost bracket related to capital structure. Financing cost bracket related to capital structure. Financing cost bracket related to capital structure. Next bullet, investing cost. Next bullet, investing cost. Investing cost bracket related to long lived assets, that is fixed assets. Related to long lived assets, that is fixed assets. Related to long lived assets, that is fixed assets. Long lived assets, that is fixed assets. ठीक है, ओके।
एक्विजिशन एंड मर्जर इन्वेस्टमेंट या फाइनेंसिंग जनरली क्या होगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे और क्वेश्चन आ सकते हैं। सर हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स किए तो कहाँ जाएगा, सर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किए तो कहाँ जाएगा, हम शेयर मार्केट में लगाए तो कहाँ जाएगा। आई कैन एक्सप्लेन दैट बट आई विल नॉट एक्सप्लेन दैट राइट नाउ, बिकॉज ना ही हम लोग एफएसए कर रहे हैं। तो आपको जो मन में आए आप खुद रिसर्च कर सकते हैं, अभी के लिए नो, बहुत डाइवर्जन वुड बी ए कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। चलिए नेक्स्ट, अब बात आ रहा है कि टॉपिक का नाम है ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी एंड वर्किंग कैपिटल एनालिसिस। तो वर्किंग कैपिटल जो है उसमें अपने नॉन कैश वर्किंग कैपिटल पे ध्यान देते, एक बार कैश को छोड़ दीजिए। सो एक हो गया अकाउंट्स रिसीवेबल, एक हो गया इन्वेंट्री और एक हो गया अकाउंट्स पेएबल। अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री एंड अकाउंट्स पेएबल। क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो सार्थक, दिनेश, राजदेव? यू आर सेइंग आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट इन November 26, सो शुड आई कंटिन्यू विथ यू? 100%। उसी के लिए तो पढ़ाई हो रही है। Many students are going to sit in November 26. Please don't disturb me in between. You can ask that to the staff. Because मैं हर एक जन का मैसेजेस देखना चाहता हूँ और देखने में आप डाइवर्ट कर देते हो तो फ्लो बिगड़ जाते हैं। यस, तो आई वाज सेइंग नेट वर्किंग कैपिटल इज अकाउंट्स रिसीवेबल प्लस इन्वेंट्री माइनस अकाउंट्स पेएबल। अकाउंट्स रिसीवेबल प्लस इन्वेंट्री माइनस अकाउंट्स पेएबल। सर अकाउंट्स रिसीवेबल तो आप डेटर्स बोलना चाह रहे हैं ना? यस, बट यूजुअली दे विल यूज द वर्ड अकाउंट्स रिसीवेबल। वैसे क्रेडिटर्स को दे विल कॉल इट अकाउंट्स पेएबल। तो नेट वर्किंग कैपिटल में पैसा तो अटकता है ना, अगर अपना क्रेडिट सेल हो गया और पैसा अटका हुआ है तो वो पैसा जो है उसका तो ब्याज जा रहा है। इन्वेंट्री में पैसा अटका हुआ है तो उसका भी तो ब्याज जा रहा है। पर अकाउंट्स पेएबल इज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस। हम लोग सप्लायर को लटका रखे हैं, उसको 60 दिन बाद 80 दिन बाद पेमेंट करें, दैट्स अ सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो बैलेंस शीट में जो भी एसेट साइड में है दैट इज ए यूज ऑफ फंड्स, और जो भी लायबिलिटी साइड में दैट्स अ सोर्स ऑफ फंड्स। तो आई एम टॉकिंग अबाउट वर्किंग कैपिटल एनालिसिस, अकाउंट्स रिसीवेबल, इन्वेंट्री एंड अकाउंट्स पेएबल। हाउएवर मेरे को लगता है उस पर हड़बड़ी हो जाएगा अगर मैं बताना चाहूँगा तो। अभी तो मेरा टारगेट तो था कि मैं उसका ही बता दूंगा, फिर आप लोग को एक केस स्टडी कराऊंगा, बट वो टारगेट जो है आई वुड नॉट लाइक टू गो राइट नाउ, बिकॉज मेरा 9:30 से फास्ट ट्रैक का बैच है एंड आई थिंक आई शुड बेटर टेक एटलीस्ट 30-40 मिनट्स का रेस्ट। अपनी कल भी क्लास है, कल जो क्लास है 2 बजे है। टुमारो क्लास इज एट 2 PM। इट्स अ फेस टू फेस क्लास फॉर कैलकाटा स्टूडेंट्स जो लोग करते हैं फेस टू फेस में। फेस टू फेस क्लास है एल्गिन सेंटर में, ठीक है। लाइव ऑनलाइन तो होगी ऑब्वियसली, ठीक है। तो कल क्लास है, संडे को भी क्लास होगी। कारण क्या, कब मेरे को कहाँ ट्रैवल करना पड़ेगा मेरे को पता नहीं है। अलग अलग कॉलेजेस से इनविटेशन है जिसको डिक्लाइन नहीं कर सकते हैं, बिकॉज नंबर 1 सो मेनी स्टूडेंट्स आर इन्वॉल्व, नंबर 2 आई हैव अ रिलेशनशिप विद देयर लीडरशिप, सो आई कैन नॉट जस्ट से नो। सो बिकॉज ऑफ विच आई वॉन्ट टू पुट इन क्लासेस वेर एवर आई कैन पुट इन। तो कल 2 बजे क्लास है अपना फेस टू फेस, ऑनलाइन लाइव तो है ही 2 बजे। इसको कंटिन्यू करेंगे वर्किंग कैपिटल। आई एम अज्यूमिंग दैट मैंने वर्किंग कैपिटल के बारे में कुछ भी डिस्कशन नहीं किया है, ठीक है। मनीष इज सेइंग वेयर कैन वी रीड टुडेज लेक्चर डिटेल्स? रीड टुडेज लेक्चर डिटेल्स, कोर रीडिंग जो है ना, कोर रीडिंग CFA इंस्टीट्यूट का, वो बहुत बार सारे ग्रुप्स पे शेयर हो गया। CFA इंस्टीट्यूट का कोर रीडिंग्स आपको रीड करना है, आप वहाँ से रीड कर सकते हो। आज के क्लास का नोट्स वगैरह जो है वो ड्राइव पे शेयर होगा। आज के क्लास का ऑडियो समरी जो है वो ऑडियो लिंक पे शेयर होता है, ठीक है। और वरुण बंका, नहीं कौन बोल रहा है, नहीं वरुण बंका तो पहले से मनीष पूछ रहा है, तो मनीष का हो सकता है पहला क्लास हो गया जो भी है, ठीक है। विल देयर बी डेरिवेटिव्स का लर्निंग मॉड्यूल 2 का टेस्ट दिस वीकेंड? यस, आई डोंट नो अपने इन्फॉर्मेशन कैसे नहीं दिए। लर्निंग मॉड्यूल 2 का टेस्ट होगा, बट कल नहीं करेंगे उसको, संडे को करेंगे, ओके। LM2 का टेस्ट कल नहीं संडे को होगा वो। चलिए